आप सब लोग ना ई स्पोर्ट्स और गेमिंग सीन को काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो। Global esports is moving forward. Team Soul! Major champions made possible. लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कई नई टर्म्स हम सबके सामने आई हैं। लोको लेजेंड्स क्या है, स्टैन के कलेक्टिबल्स क्या है और प्लेयर कार्ड्स क्या है, ई स्पोर्ट्स टीवी पर आने से क्या क्या इंप्रूव होगा और वैलोरेंट के 2023 के साइकिल में कौन से चेंजेस हैं। सवालों की कमी नहीं है बॉस आज के एपिसोड में, और कम्युनिटी पे इसका क्या इंपैक्ट होगा मैं इस एपिसोड में आपको सब समझाता हूं। आप सब ने YouTube पे तो 100K करवा ही दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब लोको पे भी जाओ, फॉलो करो। मेरा नाम है राहुल नजूजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स अब उस मुकाम तक आ चुका है जहां यार चेंजेस और एवोल्यूशंस होना बहुत जरूरी है। प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, इन सबके लिए ही ई स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट हमेशा से था, बट अब फैंस के लिए भी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट आने वाला है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया मास्टर्स सीजन 1 लोको ने लोको लेजेंड्स अनाउंस किया। ये एक NFT ऐप है, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। मैं खुद इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्यों ना लोको और लेजेंड्स के CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से ही जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। My name is Prasad Kazrekar. I work with Loco as lead product manager, and I have been working with Loco since 2019. Since the very beginning, the goal has always been to build products, experiences, and features that connect both streamers and fans together. And that has led us to building new product as well, which is Loco Legends. When we talk about esports and the community, it's already a huge community that we have. Fans plus streamers both together are exploring ways wherein they can connect with each other. Now, even at Loco, we have features that we have built, like the chat, stickers, tipping, questions and answers, and a lot of things like moderator stuff. So these help both the streamers and the fans to connect with each other. But when we talk about digital collections, it's the perfect answer where the streamers and viewers can connect with each other. And for fans, I would say it just turbocharges their fandom, wherein you can say, I own a piece of that streamer, and Right. this is what No, absolutely makes sense. communication. If anyone is watching this video on their mobile or laptop, desktop, you can just log on to locolegends.com, and once you sign up, you get a waitlist number. So that number decides who will get the NFT, and this is going to be a free NFT. So we are running a That's amazing. program wherein top 1,000 users will get free NFTs and it could be of their favorite streamers also. Now, if your rank is say 10,000, okay, I just joined, I'm late for that. Now we have a hack wherein you can invite your friend, and if they join, you can jump the rank by 5,000. We are running it for a short time. That's amazing. Yeah, so that's a hack league, you would say, to enter into your favorite streamer NFT. That's amazing. So with that said, guys, invest on your own accord, buy on your own accord. Obviously, Prasad will agree with me when we say do your research properly. Right? Correct. We have built the ecosystem in the Web 2.0, and we want to extend that in the Web 3.0 with the NFTs. We are creating a gaming metaverse, and we want all the streamers to be part of it. And we are going to help them, and together we are going to create this gaming metaverse. Let's join hand and let's create the history for Indian gaming ecosystem. Wow. Thank you so much, Prasad. That was amazing. Thank you. इस ऐप के साथ फैंस एंड सपोर्टर्स डिजिटल नॉन फंजिबल कलेक्टिबल्स को ओन करके आने वाले दिनों में एक वेब 3 की फैंटेसी गेम में खुद पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अर्ली जुलाई इसको पब्लिक यूज के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ साथ बैटलग्राउंड्स मास्टर सीरीज में स्टैन ऐप भी एक स्पॉन्सर है। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें रेयर ई स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स को आप लोग ट्रेड, कलेक्ट और कंपीट कर सकते हो। वो WWE के फिजिकल कार्ड याद है क्या? स्टैन लेकर आया ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट डिजिटल फॉर्म में, एंड ये ऐप भी बेटा फेज में है। एंड थैंक्स टू एप्स लाइक दिस इन लोको लेजेंड्स, इट रियली लुक्स लाइक ई स्पोर्ट्स अब एक नई दिशा में जा रहा है। इस पे आपके ख्यालात मुझे जरूर बताना। यार BGMI एक हफ्ते से स्टार स्पोर्ट्स पे चल रहा है। बैटलग्राउंड्स मास्टर सीरीज का लॉन्च वीक अब खत्म हो चुका है और दूसरा वीक ऑलरेडी अंडरवे है। लॉन्च वीक में 24 टीम्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुई और हर टीम ने 8 मैचेस खेली। इरांगल, मीरामार, सैनहॉक में खेले गए मैचेस और बहुत सारे टीम्स ने धुरंधर परफॉर्मेंस दिखाई।
लॉन्च वीक के लीडर बोर्ड पे स्काईलाइट्स गेमिंग ने अपनी जगह टॉप पे बनाई विद अ टोटल ऑफ 103 पॉइंट्स। फैन फेवरेट सोल की टीम सेकंड पोजीशन पर दिखी और थर्ड पे टीम इनसेन दिखी। बहुत सारे अवार्ड्स भी थे यार इस लॉन्च में। हंगर क्योर यानी कि टीम विद द मोस्ट चिकन डिनर्स जीता स्काईलाइट्स गेमिंग ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने वीक 1 के फियर्स। एलिमिनेटर का खिताब डेस्ट्रो ने जीता। डैमेजर बने जॉनथन। सेवियर का खिताब जीता टीम सोल के हेक्टर ने। डॉक्टर बने एसजी के गमला बॉय। दोस्त अवार्ड और क्रूजर का खिताब जीता टीएसएम के ब्लेज। और मोटर हेड बने 8 बिट के जूसी। भाई साहब, एक इवेंट में इतने सारे अवार्ड्स, फिल्म फेयर हो गया। और ये तो सिर्फ वीक 1 की कहानी थी। अभी तो लीग स्टेज में 2 हफ्ते बाकी हैं। इस लीग स्टेज के बाद लीडर बोर्ड की टॉप 16 टीमें फाइनल्स खेलेंगी जो कंडक्ट होगा जुलाई 13 से जुलाई 17 तक। ये 2 हफ्ते लॉन्च वीक से थोड़े अलग होंगे, जहां पूरा हफ्ता चलेगा 24 टीम्स के बीच में स्कर्मिश। और वीकेंड के पहले ये स्कर्मिश के जो टॉप 16 टीम्स होंगे उनके बीच में होंगी वीकेंड फाइनल्स की टक्कर। ग्रैंड फाइनल्स के क्वालिफिकेशंस के लिए वीक 1 के पॉइंट्स और वीक 2 और वीक 3 के वीकली फाइनल्स को क्यूमुलेट करके फाइनल 16 टीमें डिसाइड होंगी। फुल क्रेडिट्स टू नॉर्डविन गेमिंग मैनेजमेंट फॉर दिस एपिक कॉन्सेप्ट। लैन शुरू होने से पहले एज ऑलवेज वी सॉ सम मोर रोस्टर चेंजेस। टीएसएम ने अनाउंस किया एक नए प्लेयर वांटेड को। राइवलरी ई-स्पोर्ट्स का भी एक नया लाइनअप देखने मिला। लैन पर विद स्लेयर, सांगवान, एडमिनो, नोवा किंग एंड स्मोकी। कास्टर और एनालिस्ट एंकी बॉट ने ओरंगुटैन ज्वाइन कर लिया है। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू हिम। यार, स्नैक्स के साथ जो भी हुआ हम सब ने देखा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स विशेस हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड रियली विशेस टू सी हिम बैक इन द बैटल ग्राउंड एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अभी के लिए चलते हैं यार औरों के पास जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल में कुछ नई खिचड़ी पका रहा है। खुशखबरी और खुशखबरी। एपेक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर एक साइलेंट अपडेट आया था, जहां पे इंडिया के सर्वर्स अब एपेक्स लेजेंड मोबाइल के गेम के अंदर डाल दिया गया है। जहां आपको पहले 80 से 100 या फिर 120 पिंग देखने को मिल रहा था, वो सडनली पिंग अब 5 से 50 का मिल रहा है और गेम बहुत ज्यादा स्मूथ और लैग फ्री हो चुका है। मैंने भी ट्राई आउट किया है, मुझे भी 50 से 40 का पिंग आ रहा है। बहुत ही अलग ही एक एहसास लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पब्लिशर्स भी इंडिया में आगे आके काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और आपको एपेक्स लेजेंड मोबाइल भी इंडिया में बूम करता नजर आएगा। फ्री फायर मैक्स में ना कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। गरीना ने फ्री फायर का नया लोगो जो रिवील कर दिया है, लेकिन उनका जो नाइफ है फ्री फायर का, वो जो क्लासिक सिंबल है उसे सेम ही रखा गया है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बट इसी के साथ साथ एफएफ कॉम्पिटिटिव ने भी कहा है कि उनके सोर्सेस के मुताबिक इंडिया गेमिंग लीग इंडिया में पहला लैंड होस्ट करने वाले फ्री फायर का। ये लैंड इवेंट आप कह सकते हो कि पैंडेमिक सिचुएशन हिट करने के बाद इंडिया का पहला लैंड इवेंट होगा। इसके रिगार्डिंग बाकी डिटेल्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही पता लगेगा। अब आप सोचिए, इतने सारे लैंड इवेंट जहां पे वैलोरेंट के हो रहे हैं, बीजीएमआई के हो रहे हैं, अब फ्री फायर में भी शायद आपको बहुत ही जल्द लैंड का मजा चखने को मिलेगा। माफियास की टीम तो एक स्ट्रीक पर है, एक के बाद एक टूर्नामेंट में डोमिनेट करते ही जा रहे हैं। इस बार उन्होंने हीरोज ऑफ गैलेक्सी का टूर्नामेंट जीत लिया है, और वो भी कैसे। दूसरे दिन पे वो 8th पोजीशन पे थे, बट उसी दिन उन्होंने 3 बूयास निकाले और फर्स्ट पोजीशन हासिल करके ये टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए हैं। मतलब कमबैक करना हो तो टीम माफिया से सीखना चाहिए। इसी के साथ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की टीम ने भी लोकेश फैन कप जीता, जिसका प्राइस पूल था 65,000 रुपए। A huge congratulations to both the teams for their amazing wins. इस हफ्ते निग्मा गैलेक्सी ने भी अपने खेमे से कुछ लीक्स जरूर से शेयर किए हैं, जहां पे ऐसा लग रहा है कि 2 प्लेयर्स उनके लाइनअप में ऐड किए जा सकते हैं, which is RNS और रोशन। अब ऐसा लग रहा है कि उनका नया रोस्टर 5 मैन का होगा, जहां पे आपको एक्स डिवाइन, गोल्डन, वासियो, RNS और रोशन खेलते हुए देखने को मिलेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी बहुत कुछ नया है। ऐसा लग रहा है कि एक नया डायरेक्शन मिल चुका है गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स और कॉल ऑफ ड्यूटी में। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन का मोबाइल वर्जन का बीटा वर्जन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। उसी के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी भी शुरू कर दिया है हमारे इंडिया की टीमों ने। 8 टीमें इंडिया क्वालिफायर्स के लिए डिसाइड हो भी चुके हैं। इंडिया फाइनल्स खेला जाने वाला है अगस्त में, और इन्हीं में से कुछ ही टीम्स आगे जाएंगे और हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, जिसके रिगार्डिंग अभी भी डिटेल्स आने बाकी है। नॉर्डविन गेमिंग और एक्टिविजन की तरफ से ऑलरेडी एक टूर्नामेंट अंडरवे है, जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया चैलेंज। ये टूर्नामेंट को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और ये टूर्नामेंट में आपको दोनों चीजें देखने को मिल रहे हैं, मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल वर्जन। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया चैलेंज के बैटल रॉयल सीजन 1 के चैंपियन बने हैं टीम KGI, और उन्होंने पूरे 6 लाख रुपए अपने नाम कर लिया है।
सेकंड पोजीशन पे थी टीम ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की टीम और थर्ड पोजीशन हासिल किया गया है बाय टीम जी। ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दीस टीम्स जिन्होंने पोडियम फिनिशेस निकाले हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया चैलेंज के मल्टीप्लेयर सीजन 1 जो कि जुलाई से शुरू होने वाला है, वहां पे ऑलरेडी 5 टीमें क्वालिफाई कर चुके हैं और बाकी 2 टीम्स आपको क्वालिफाई करते देखेंगे सीजन 2 से और ये लोग फाइट करेंगे 15 लाख रुपए के मैसिव लाइन शेयर के लिए। वैलोरेंट कोपेनहेगन मास्टर्स के लिए हर रीजन से टीम्स क्वालिफाई हो चुकी है। एपैक रीजन से एक बार फिर से पेपरएक्स और ज़र्क्सिया की टीम्स क्वालिफाई हुई और पीआरएक्स ने इसके साथ-साथ चैंपियन स्टेज के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। EMEA की चैंपियन बनी फनाटिक की टीम और उनके साथ गिल्ड ई-स्पोर्ट्स और फन प्लस फीनिक्स क्वालिफाई हुए मास्टर्स के लिए। नॉर्थ अमेरिकन रीजन से एक्सेट और ऑप्टिक गेमिंग क्वालिफाई हुए। जापान से नॉर्थ एप्शन ने सीरीज को जीता। DRX की टीम रिप्रेजेंट करेगी कोरियन रीजन को और ब्राजील चैलेंजर्स से लाउड की टीम क्वालिफाई हुई। कोपेनहेगन मास्टर्स पहला वैलोरेंट लैन इनविटेशन होगा जो लाइव ऑडियंस को फीचर करने वाला है। LCQ के लिए कई सारी टीम्स क्वालिफाई हुई, वहीं कई टीम्स के होप्स भी टूट गए। आई एम सैड कि ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए भी LCQ के दरवाजे बंद हो चुके हैं फॉर दिस ईयर। इट्स ऑल राइट, ये ब्रेक टीम को और भी टाइम देगा टू इवैल्यूएट व्हाट्स बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एनीवे, वैलोरेंट का 2023 का साइकिल इस करंट सिनेरियो से काफी बदलने वाला है बिकॉज ऑफ द न्यू पार्टनर लीग प्रोग्राम। कम्युनिटी में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है इस पार्टनर लीग के रिगार्डिंग एंड द ट्रूथ इज किसी को भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में अदर दैन व्हाट राइट हैज पब्लिकली अनाउंस्ड। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डॉट ई-स्पोर्ट्स, 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने इस रायट के पार्टनर लीग के लिए एप्लीकेशन डाली है। एट द एंड ऑफ द ईयर, रायट ऑफिशियल्स इन एप्लीकेशन से पार्टनर डॉग्स के बारे में रिसर्च करके लीग फ्रैंचाइज के पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। साउथ एशियन थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स की सीन की बात की जाए तो TEC कम्युनिटी कप ग्रैंड फाइनल स्टेज पर है विद रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स एंड लीथल ई-स्पोर्ट्स। लीथल ई-स्पोर्ट्स ने जीता esports.in का पहला क्वालिफायर अगेंस्ट मेडल ई-स्पोर्ट्स 3-2 के स्कोर लाइन के साथ बहुत ही क्लोज फाइट में। नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द लैंड फाइनल्स जो साल के एंड में हो रहा है। ब्लीड ई-स्पोर्ट्स ने भी समर लीग अनाउंस किया विद 10K SGD प्राइस पूल फॉर द टीम्स दैट डिड नॉट क्वालिफाई फॉर LCQ। देखते हैं कौन सी टीम साउथ एशियन रीजन से इस टूर्नामेंट में खेलती है। ई-स्पोर्ट्स एक नई दिशा में जा रहा है एंड इस सीन में सिर्फ प्लेयर्स और ऑर्ग्स के लिए ही नहीं बल्कि कम्युनिटी, फैंस, सपोर्टर्स, इन सब के लिए ढेर सारी जगह है। वैलोरेंट जापान से जबरदस्त लैन वाली फोटोज देखने मिल रही हैं। एक दिन ऐसे लैन इवेंट्स ना इंडिया में भी होंगे। तो जाहिर सी बात है यार, हेट और ऑब्सिनिटी फैलाने की जगह सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ अपने फेवरेट टीम्स के लिए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। 100K तो बस एक स्टेपिंग स्टोन है एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों पे फॉलो कर देना। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।